Good morning, students. I hope you people are very fine at your home. Today, this is your second lecture of business study. This is your second lecture of business study, and the chapter is 1, Nature and Significance of Management. Lecture number second is going on, and your lesson number 1 is already, the topic is mentioned here, nature and significance of management. In my previous lecture, you people know very well, I had explained only the definition of management. What is management? I told you ना, मैंने आपको बताया था कि management क्या होता है. What is management? So you know very well, to manage or control something in systematic order, in chronological order, in financial order, according to what the statement is saying, that is called management. समझ में आ रहा? तो same the management is having many concepts. Apart from that, the heading is here, concept of management. मैनेजमेंट आप जानते हो, मैनेजमेंट का मतलब होता है टू मैनेज समथिंग, लेकिन उसी मैनेजमेंट को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसे हम उसकी हेडिंग को कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है? कोई काम आप करते हो तो उसका कोई कॉन्सेप्ट होता है. कॉन्सेप्ट क्लियर होना भी चाहिए. यू शुड क्लियर योर कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू ऑल. Your concept should be clear, then only you are going to understand. आपका concept clear रहेगा तभी आपको समझ में आएगा. तो same thing is here in management, nature and significance of management. The second topic is concept of management. We are going to study this topic. Here the concept of management having a three steps. Every management, every process have their different concept, but here the management is having three concepts. Number 1, process. Number 2, effectiveness. Number 3, efficiency. Number 1, process. Number 2, effectiveness. Number 3, efficiency. I am going to discuss about these three topics. In this lecture, I am going to discuss only about these three topics. You will understand. I hope so. आप लोग बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर ब्लैक बोर्ड को देखिए और आपको समझ में आएगा. इफ यू आर नॉट गेटिंग अ फुल मैटर व्हाट इज रिटन हियर, once again I am dictating you all. If you are watching the video, take your note copy, you should write it. It will help you in the exam. The chapter is nature and significance of management. Management definition I had already told my previous lecture. Second topic of your lesson is concept of management. What is the concept of management? There are three concepts of management: process, effectiveness, efficiency. आपको तीनों प्रोसेस क्लियर हुआ? तीनों प्रोसेस का बारे में आपने समझा. Now we are going to know about one concept. Concept number 1, प्रोसेस. आप कहेंगे सर ये प्रोसेस क्या होता है? व्हाट इज प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ना, आपसे कोई पूछ सकता है इन एग्जाम या एनीवेयर, एनी योर फ्रेंड, एनीबॉडी कैन आस्क यू व्हाट इज प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट. सो यू नीड टू गिव अ वेरी जेंटल एंड पोलाइट आंसर. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. प्रोसेस मींस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, controlling. That is called process of management. That is called process of management. मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, कंपनी का भी एग्जांपल दूंगा, एक आपको घर का भी एग्जांपल दूंगा. एक कंपनी का एग्जांपल दूंगा, एक घर का भी एग्जांपल दूंगा. आपको प्रोसेस का टॉपिक समझ में आ जाएगा. तो आइए प्रोसेस का मतलब समझिए. प्रोसेस का मतलब वो सिस्टम, वो वे, किसी चीज को हम स्टार्ट जब करते हैं तो पहले क्या होती है? प्लानिंग होती है. आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई बिजनेसमैन होता है, एनी बिजनेसमैन इज देयर या बिजनेस ओनर इज देयर, व्हाट दे डू? फर्स्ट दे प्लानिंग.
प्लान सेटअप करते हैं, प्लान सेटअप करने के बाद ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको मार्केट में लेके आते हैं, फिर उसके लिए स्टाफिंग, स्टाफ को रिक्रूट करते हैं, स्टाफ को मैनेज करते हैं, उसके बाद उस पे क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, स्टाफ पे कंट्रोलिंग करके, डायरेक्टिंग करके, प्लानिंग को सेटअप करके वो बिजनेस को कंटिन्यूटी को बढ़ावा दे देते हैं। ये सारे लोग मिलकर ये सारे प्रोसेस लेकर के, तो इसको हम कहते हैं प्रोसेस कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इज द प्रोसेस कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट? इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इन विच प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ड्राफ्टिंग एंड many activities done or placed by the businessman for the betterment of the business, that is called process of management। अब मैं घर का एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मम्मी घर पे, आपको बता दें, मम्मी घर पे चाहे राइस बनाना हो, चाहे पल्स बनाना हो, ये एग्जांपल ले लीजिए, दही बनाना हो, प्रोसेस देखिएगा। तो राइस बनाना है तो मम्मी क्या करेगी, प्लान करेगी, आज मुझे राइस बनाना है, कैसे बनाना है। वाटर लेगी मम्मी, राइस लेगी, फिर उसको गैस पे रखेगी, रखने के बाद जो है तब जाकर के आपका राइस कंप्लीट प्रोसेस से वो तैयार हो जाएगा। दही बनाना है मम्मी को, दही के लिए मम्मी क्या करेगी, दूध लेगी, उसके बाद फिर उसको बास्केट में रखेगी या किसी यूटेंसिल में रखेगी, रखने के साथ साथ उसको फ्रिज में रखेगी, रखने के बाद कई सारे प्रोसेस से गुजरना होता है दही बनाने के लिए, समझ में आ रहा? तो वो प्रोसेस कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है। वो मैनेजमेंट कौन कर रही है, मम्मी कर रही है घर पे। तो इसी तरह बिजनेस में प्रोसेस कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है कि मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस क्या होता है, वो प्रोसेस वो सारे चीज को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, तब जाके आपका बिजनेस सेटअप आगे बढ़ता है। आई होप कि अगर क्लियर हो जा रहा है आपको तो वेरी गुड। नहीं क्लियर हो रहा है तो कमेंट में आप बताइएगा, मैं आपको उसको रेक्टिफाई करूंगा, उसको फिर से समझाऊंगा, बताऊंगा भी आप लोगों को। देखिएगा, अब आइए सेकंड टॉपिक आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट का इफेक्टिवनेस। ये आप इससे समझ जाएंगे। प्रोसेस में आपने समझा, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है फिनिशिंग द टास्क ऑन टाइम और अचीविंग गोल्स। इफेक्टिवनेस, जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए आप लोग ने, आपके पास स्टूडेंट आप हैं, आपके पास 3 आवर्स रहते हैं एग्जाम में, 3 आवर्स आपके पास रहते हैं एग्जाम में। आपको टास्क मिला है 3 घंटे में आपको बिजनेस का पेपर कंप्लीट करना है। 3 आवर्स में आपको बिजनेस का पेपर कंप्लीट करना है। तो अगर आप 3 आवर्स के अंदर, 3 आवर्स के इंटरवल आप अपने टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं, तो ऐसे प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्ट को इफेक्टिवनेस कहते हैं। समझ में आ रहा? मैं अपना कोर्स टाइमली, अपने लिमिटेड टाइमली में अगर कंप्लीट कर लेता हूं, उससे हम इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। समझ में आ रहा है कि आपको? व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट? कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज हैविंग 3 पार्ट्स: प्रोसेस, effectiveness and efficiency. Process you know very well, I have already discussed you. Now I am discussing you effectiveness concept of management. Effectiveness concept of management वो मैनेजमेंट होता है जो टाइमली काम को कंप्लीट कर लेता है, उसे हम इफेक्टिवनेस प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आया एफिशिएंसी। हमारा नेक्स्ट क्या आया? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? यूजिंग लेस रिसोर्सेज एंड गिव्स मोर आउटपुट। कम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके ज्यादा आउटपुट देना, ऐसे मैनेजमेंट को हम एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। समझिएगा, यूजिंग लेस रिसोर्सेज, प्रोवाइडिंग अ मोर आउटपुट, बेटर आउटपुट, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। समझ में आ रहा? इसे हम क्या कहते हैं? एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। मैं आपको एक सीधा सा आपको एग्जांपल दे देता हूं, आपको ये भी समझ में आ जाएगा। देखिएगा, आप कभी मार्केट में, यू गो टू द मार्केट, कहीं आप मार्केट में जाते हो तो आपने देखा होगा गन्ने का जूस जो देता है, गन्ने का जूस जो देता है क्या करता है? आप देखते होगे गन्ने को वो मशीन में फर्स्ट टाइम डालता है तो वहां पे मोर लिक्विड फॉर्म में जूस निकलता है, लेकिन वो क्या करता है? थ्रो नहीं करता। सेकेंड टाइम अगेन ही गॉट जूस, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, वो करते करते लेस रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके आपका पूरा ग्लास फिल अप कर दिया। समझ में आ रहा? उसे बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज बोलते हैं। उसे क्या कहते हैं? एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं ना।
using less resources, providing better output या better production, that is called efficiency of resources. I hope कि ये तीनों टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, आपको ये टॉपिक समझ में भी आया होगा और इस टॉपिक को आप कॉन्सेप्ट अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए। मैनेजमेंट को पहले इसकी डिफिनेशन सेटअप करिए, सेटअप करने के साथ सेकंड टॉपिक आपका आया कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में आपका प्रोसेस है, प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इफेक्टिवनेस क्या होता है? इफेक्टिवनेस वो होता है प्रोवाइडिंग अ वर्क, कंप्लीटिंग अ वर्क in a limited period of time, given period of time, that is called effectiveness. And efficiency concept of management क्या होता है? Efficiency concept of management वो management होता है using less resources, providing a better output, more output, that is called efficiency of resources. I hope कि आपको समझ में आया, क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में भी आया होगा। Now once again I am going to revise this all, then after that you will get next topic in my next lecture. मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। हम वेरी एक ही टॉपिक टच करेंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। सिंगल टॉपिक यू शुड अंडरस्टैंड। कोर्स हम आपको रन अप कर सकते हैं, नहीं करना मुझे, कोर्स आपको टाइमली कंप्लीट करके देंगे। इफेक्टिवनेस हम करेंगे आपके साथ, इफेक्टिवनेस कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट करेंगे टाइमली, लेकिन आपको समझ में भी आना चाहिए। और रिसोर्सेज आपको क्या करना है? आपको रिसोर्सेज बिल्कुल यूटिलाइज करना है और रिजल्ट आउटपुट अच्छा देना है। रिसोर्सेज मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करिए। आपको समझ में आ गया होगा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज process by which we can manage and control our organization in the form of financial, in the form of business, in the form of marketing, in the form of sales and purchase, etc. What is the concept of management? There are mainly three concepts of management. Number one, process. In process, planning, organizing, staffing, controlling and drafting, this all comes the process concept of management. Now second, effectiveness. Effectiveness means completing a work or ending the work within a given period of time, that is called effectiveness concept of management. And what is efficiency concept of management? Using less resources, providing more output, that is called efficiency concept of management. I hope आपको समझ में भी आया होगा। जो नहीं समझ में होगा you should mention in the comment box and we will meet you in my next lecture, that is tomorrow. Thank you. Good day.